have seen the input characteristic. Input characteristic is between I, V. Input is कॉमन एमिटर है तो IB एंड VBE when VCE is constant. ठीक है. So what you have to do is you have to keep VCE voltage constant to 2 volt. Okay. Then go on increasing VBE voltage and note down IB current. Okay. So your characteristic is after 0.7 volt there is sudden increase in the current, that is for VCE is equal to 2 volt. If we increase the VCE, what happened? If VCE is increased to 4 volt तो क्या होगा? VCE is a reverse voltage, so depletion layer increases and it will be more penetrated into lightly doped region, that is base. So width of base reduces, IB reduces. Okay. So if you go on increasing VCE voltage, there is decrease in the IB current. Decrease in the IB current. Okay. VCE 4 volt. Then we have to plot the output characteristic. This is input characteristic. Now the output characteristic. Output characteristic is between IC versus VCE when IB is constant. ठीक है. So here what you have to do is you have to make IB constant to 10 microampere, 20 microampere, like that you have to make IB constant. फिर IB को constant करके you have to go on increasing the VCE and you have to note down the IC. So you will get like this graph. Okay, this already we have seen in the class में ये देखा है हम लोगों ने, राइट. तो 0 जब IB रहेगा, IB इज इक्वल टू 0 माइक्रोएम्पियर, तो क्या होगा? कट ऑफ रीजन. सो दिस इज योर कट ऑफ रीजन. Then this one increasing part is a saturation region and this is the active region. When we are using transistor as an amplifier, we are using the transistor in active region and in saturation region transistor act as a switch. ठीक है. अभी करना कैसे है? तो this circuit diagram is given. हम लोगों को इनपुट के लिए क्या नोट डाउन करना है? IB एंड VBE और VCE को कांस्टेंट रखना है. सपोज हम लोगों ने VCE को कांस्टेंट रखा 2 वोल्ट. ओके. तो ये सर्किट में क्या करना है? VCE इंक्रीज करना है. ठीक है. स्विच ऑन करोगे, VCE इंक्रीज करोगे, VCE को इंक्रीज करोगे तो यू विल गेट VCE. तो थ्रू VCC विद द हेल्प ऑफ VCC यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ VCE और उसको 2 वोल्ट करके छोड़ देना. फिर VCE को VCC को हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे. नाउ आवर VCE इज कांस्टेंट. अंडरस्टूड. अभी VBB को इंक्रीज करो. इनपुट साइड इंक्रीज VBB को इंक्रीज करोगे तो क्या चेंज होगा? VBE चेंज होगा. Okay, so go on increasing VBB voltage, so your VBE will increase, and for that VBE you have to note down the IB current. So how you will get the current? Initial state up to 0.7 volt theoretically, but practically 0.5 or 0.6 volt में ही you will get the sudden increase in the current. So that point you have to note down. कैसे आता है वो हम लोग देखेंगे. Understood? So this is for the input characteristic. For output characteristic, what we have to do is we have to keep IB constant. तो IB कहाँ पे है? यहाँ इनपुट साइड में. तो इनपुट साइड को कांस्टेंट करने के लिए और वेरी करने के लिए मुझे 10 माइक्रोएम्पियर कांस्टेंट करना है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? VBB को इंक्रीज करना पड़ेगा. तो VBB जब मैं इंक्रीज करूंगी तो VBE चेंज होगा और तभी IB चेंज होगा. बराबर. तो VBB को मैं चेंज करूंगी तो देयर इज चेंज इन दी IB करंट. तो विद द हेल्प ऑफ VBB यू हैव टू मेक IB कांस्टेंट.
फिर इसको कांस्टेंट करने के बाद यहाँ पे VBB को हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे. देन व्हाट वी हैव टू डू इज यू हैव टू इंक्रीज VCC. VCC इंक्रीज करेंगे तो VCE इंक्रीज होगा. ओके, सो डिफरेंट वोल्टेजेस, VCE के जो डिफरेंट वोल्टेजेस है वो वोल्टेजेस के लिए यू हैव टू नोट डाउन IC कर. फिर VBB को चेंज करो, दूसरा 20 माइक्रो एम्पियर में IB कनेक्ट करो. फिर यहाँ पे सेम VCC चेंज करो, VCE चेंज होगा, नोट डाउन IC. फिर अगर तीसरा रीडिंग लेना है तो विद द हेल्प ऑफ VBB यू हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ IB. Again change VCC, VCE will change, you have to note down IC. So like that you have to take the readings. Understood? अभी कर toward me. So emitter, base, collector. So we are connecting the transistor. Okay. अभी हम लोग फर्स्ट देखेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक. तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या है, ट्रांजिस्टर कनेक्ट किया, बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड, एमीटर एंड वन रेजिस्टर. ओके, सो रेजिस्टर इज 100K. 100K मतलब क्या हुआ, ब्राउन, ब्लैक, येलो, दैट इज 100K. तो 100K फ्लैट साइड हमारे साइड पे होता है तो नहीं बैक साइड. तो फिर कलेक्टर ये रहेगा. तो हियर समवेयर आई एम कनेक्टिंग द रेजिस्टर. ओके, हियर आई हैव कनेक्टेड द रेजिस्टर एंड बेस में एमीटर कनेक्ट करना है. तो आई एम कनेक्टिंग दीज टू वायर्स. व्हाई वी आर कनेक्टिंग इन बिटवीन, बिकॉज करंट इज मेजर्ड इन series. तो one terminal is to the resistor and another terminal is connected to the base of the transistor. तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, मेरा एमीटर आएगा. ठीक है. देन बेस टू एमीटर, वोल्ट मीटर. तो दिस इज बेस एंड ग्राउंड. एमीटर इज ग्राउंडेड. तो डायरेक्टली आई एम कनेक्टिंग दी वायर टू दी एमीटर. ठीक है. तो वो हो गया मेरा वोल्ट मीटर. VBE वोल्टेज मुझे यहाँ पे मिलेगा, IB करंट बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स. ठीक है. देन व्हाट एल्स वी हैव टू कनेक्ट, RB रेजिस्टर है, उसके एक टर्मिनल को हम लोगों ने एमीटर कनेक्ट किया एंड द अनदर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू VBB, दैट इज सप्लाई. हाँ, तो यहाँ पे एक वायर पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव कहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, ग्राउंड. क्या है, एमीटर है. तो एमीटर को मुझे अभी इन दिस केस सो मेनी टर्मिनल्स वी आर कनेक्टिंग टू द ग्राउंड, तो ये हम लोग ग्राउंड कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है. एमीटर को मैंने ग्राउंड किया और यहाँ पे मैंने ग्राउंड कनेक्ट किया फॉर VBB एंड दिस वायर इज फॉर वोल्टेज VBE. VBE is between base and emitter, and this is for connecting VBB voltage, supply voltage. ठीक है. So this input side is complete. सप्लाई वोल्टेज दूसरे लाइन में, ग्राउंड और सप्लाई वोल्टेज की लाइन से अलग है. कहाँ पे, ये जो आप तीनों एक ही लाइन में कनेक्ट किया है, सप्लाई वोल्टेज. No, this is ground only. अच्छा, This is grounded. This is the VBE का negative terminal. This is VBB का negative terminal. So all the things are grounded. ठीक है. उसके बाद अभी कलेक्टर में आ जाते हैं. कलेक्टर के यहाँ पे भी एमीटर कनेक्ट किया है, बट नाउ वी आर गोइंग फॉर द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक. और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमें क्या चाहिए, IB करंट एंड VBE. बराबर. IC करंट नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली रेजिस्टर कनेक्ट कर देंगे. हाँ, तो कलेक्टर से रेजिस्टर आया और वो आया VCC टर्मिनल के लिए. ठीक है. तो कलेक्टर इज, मैंने उल्टा लगाया, दिस इज एमीटर. एमीटर बेस, दिस इज कलेक्टर. कलेक्टर से यहाँ पे लगाया एंड द वन टर्मिनल इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VCC
एंड अनदर टर्मिनल इज ग्राउंडेड। ठीक है, तो ये ग्राउंड को लगाया। तो दिस इज माई VCC। नाउ वी हैव टू नोट डाउन VCE बिकॉज वी हैव टू मेक VCE कांस्टेंट। तो कलेक्टर एंड एमीटर के बीच में भी मुझे एक वोल्ट मीटर लगाना है। तो दिस इज माई कलेक्टर टर्मिनल एंड दिस इज माई एमीटर टर्मिनल, ग्राउंड। ठीक है भाई, अंडरस्टूड दिस? समझ में आया पक्का? चलो अभी ये कनेक्ट करो। सपोज दिस इज VCC, सॉरी VBB। तो VBB इस कहाँ पे है? बेस का रेजिस्टर ये, हाँ, वहाँ पे पॉजिटिव है एंड निगेटिव। कोई भी वायर को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, नेगेटिव। देन एमीटर, करंट हम लोग यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। वन मोर वायर इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या मेजर करना है? IB करंट। तो IB करंट का कहाँ पे है? बेस एंड रेजिस्टर। ठीक है, तो पॉजिटिव कहाँ रहेगा, निगेटिव कहाँ रहेगा? बेस पे पॉजिटिव है, नेगेटिव। नहीं, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो हियर इज द पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव टू निगेटिव। तो कहाँ पे है? रेजिस्टर के यहाँ पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर गलत करोगे तो भी नेगेटिव में आएगा वैल्यू। और कहाँ पे है? बेस में। तो ये बेस में हो गया। आया समझ में? अभी और क्या कनेक्ट करना है हम लोगों को? वोल्ट मीटर बिटवीन बेस एंड एमीटर। इसके लिए भी प्रोब लगेगी ना। रजिस्टर, तो एमीटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है, नाउ सी दिस डायग्राम। तो बेस ऑलवेज स्टार्ट विथ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर एमीटर कुछ भी लोगे तो भी चलेगा, बट ट्रांजिस्टर का बेस कहाँ पे कनेक्टेड है? ट्रांजिस्टर बेस इज कनेक्टेड टू एमीटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको कनेक्ट किया एमीटर को। ठीक है, वन टर्मिनल इज टू दी बेस एंड अनदर टर्मिनल इज टू दी रेजिस्टर। ठीक है, तो एक रेजिस्टर को हुआ, एक बेस को आया, फिर बेस से जो रेजिस्टर का जो दूसरा टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड टू दी वोल्ट मीटर। यहाँ पे कनेक्ट किया है वोल्ट मीटर को, ये वायर जा रही है। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो दिस इज आवर VBB and this is our VCC which is connected between collector terminal and ground terminal। ठीक है, उसके बाद कलेक्टर से रेजिस्टर कनेक्ट किया। वी आर नॉट कनेक्टेड हियर एमीटर बिकॉज नाउ वी आर टेकिंग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्टली जो RC रेजिस्टर था उसका वन टर्मिनल वी हैव कनेक्टेड टू दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VCC। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया हम लोगों ने VCC। उसका एक टर्मिनल कहाँ है? देखो रेजिस्टर के पास है, और जो दूसरा टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है। ठीक है, एंड VCE इज बिटवीन बेस एंड कलेक्टर एंड एमीटर। तो कलेक्टर टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में हम लोगों ने एक वोल्ट मीटर लगाया। सिमिलरली बेस एंड ग्राउंड के बीच में हम लोगों ने दूसरा वोल्ट मीटर लगाया। 2 voltmeters we have connected. We have to measure VBE and IB and we have to keep VCE constant. ठीक है, तो start। तो दिस इज आवर VBB इंक्रीज करना है। थम जरा पेपर, ओके। अभी क्या करना है? VCC को इंक्रीज करना है। जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है उसमें क्या है? IB वर्सेस VBE व्हेन VCE इज कांस्टेंट। ठीक है,
तो इसको VCE को कांस्टेंट करने के लिए मुझे VCC को इंक्रीज करना पड़ेगा, इसको 2 वोल्ट पे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग हमारा दिस वन इज अ VCC, तो इसको हम लोग इंक्रीज करेंगे एंड VCE को 2 वोल्ट पे कांस्टेंट करेंगे। We are not interested in this voltage, we are interested in this voltage, okay. Listen, we have adjusted this to 2 volt, this is my VCE, ठीक है। VCE is 2.1 volt, we have adjusted. Now what we have to do is we have to note down VBE and IB, ठीक है। तो अभी I am increasing this VBB voltage. When I am increasing VBB, there will be changes in the VBE voltage. VBE voltage. So see, the VBE voltage increases, the same time you are getting the current. Okay. So now this is constant to 0.67 volt, and still there is increase in the current. ये note down करो तुम लोग, हाँ? मैं वापस से करूँ क्या? 0.64, 0.06, then 0.66, 0.1, 0.15, 0.015. Then it is, here it is 0.66, 0.023. Now this is 0.67, the current is 0.44, 0.044. 0.67, 0.74, 0.074, 0.074. Here again 0.67, the current is 0.123. .68, the current is 0.189. Again 0.68, the current is 0.286. So it is increasing. The input voltage VB is constant, but the current is increasing. 0.68, the current is 0.322. And this current is coming in milliampere, so you have to convert it into microampere and you have to draw this. Because IB is always in microampere. Understood? Yes, ma'am. Now the next part is what? With the same circuit, we have to change the VCE voltage and again do the same process. Okay? Now the VCE is adjusted to 2 volt. Now we have to change it to 4 volt or 3 volt. ठीक है? तो हम लोग इसको 4 volt करेंगे. कैसे करेंगे? With the help of VCC voltage. तो VCC को change करो, it will change. ठीक है? So now it is 4.1 volt. Now write down the readings. 64 and the current is 0.006. दिख रहा है क्या तुम्हें ये? Yes, ma'am. 0.006. 0.64 VBE. Now VBE is 0.67. The current is 0.25. 0.025. Now it is 0.68 VBE. The current is 0.36. Okay. Still 0.68. Current is 0.64. 68,096. $68,127. Then 139.
sorry 141. 60.69, 167. 216. 251. 0.251, huh? And 322.69, 3.322. All the readings are 0.322 milliampere. ठीक है? Yes, ma'am. तो नाउ प्रीवियसली तुम लोगों का अगर रीडिंग ऑब्जर्व करोगे तो प्रीवियसली यू आर गेटिंग द हायर वैल्यू एंड हियर यू आर गेटिंग द लोअर वैल्यूज. Okay, so when we are increasing the VCE, here VCE is 2 volt, here we have kept VCE 4 volt. So when you increase the VCE voltage, the IB current goes on, IB current decreases. Okay? ठीक है. So this is about the input characteristic. Now the output characteristic. Clear? Yes, ma'am.